Wittig reaction. Wittig reaction is basically the reaction of ylides with carbonyl compounds, aldehyde or ketones to give alkene as a product. This kind of reaction is known as Wittig reaction. Ylides are basically a chemical species in which negatively charged carbon atom is attached with positively charged heteroatom. These heteroatom may be nitrogen, phosphorus or sulfur, which utilize its lone pair. These ylides are named after the name of the heteroatom. For example, in this case, negatively charged carbon atom is attached with positively charged nitrogen atom. This ylide is known as nitrogen ylide. And in this case, positively charged phosphorus atom is attached with negatively charged carbon atom. This is known as phosphorus ylide. And in the last case, negatively charged carbon atom is attached with positively charged sulfur. These are known as sulfur ylides. So there are different kinds of ylides, but in Wittig reaction we use only phosphorus ylides. Phosphorus ylides are also known as phosphorins. Depending on the substituent, these substituent may be alkyl. These alkyl, when the substituents are in the ylides are alkyl, then these phosphorins are known as alkyl phosphorins. When these substituents are aryl, these phosphorins are known as aryl or triphenyl phosphorins. When we compare the stability of these ylides, trialkyl phosphorins or trialkyl ylides, these are liquid at room temperature, and they are difficult to handle, and they are mostly not used in the chemical reaction. While uh, their aryl derivatives, triphenyl phosphorins, they are solid at room temperature and they are easy to handle, and in most of the cases they are used. These ylides are very easy to synthesize. There is a nucleophilic substitution reaction between triphenylphosphine and these alkyl halides. We get triphenyl phosphonium salt. This phosphonium salt is soluble in benzene or toluene, and this is kept under vacuum desiccator. And this is prepared before use, because these kind of species, these phosphorus ylides, phosphorins, are highly unstable. They are susceptible to protons, so they are not stored for the longer period of time. इस केस में हम जब इस साल्ट को किसी बेस हम इस केस में यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटाइल लिथियम हम यूज़ कर सकते हैं, या पोटाशियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ईथर और ड्राई THF सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में बेस यहाँ से प्रोटॉन पिक कर लेगा तो हमारे पास ये इलेट प्रोड्यूस होगा। इलिड का हम फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हो सकते हैं। तो इस केस में नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। उस केस में हमारे पास इस तरह का नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और पॉजिटिवली चार्ज फास्फोरस प्रोड्यूस होता है। और ये फर्दर इंटरनली ऑक्सीजन अटैक करता है फास्फोरस पे, और इस तरीके से हमारे पास एक 4 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाती है। फिर इस केस में ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि इंटरनली कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और फास्फोरस टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हमारे पास इस रिएक्शन में अल्कीन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है, और रिजल्टेंट ट्राइफिनाइल फास्फीन ऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये एक सिंपल जो है विटिग रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव
वी हैव स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड और कीटोन्स। जब हम एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स। उसकी रीज़न ऑब्वियस है कि एल्डिहाइड में एक साइड पे सी एच ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और न्यूक्लियोफाइल का या इलेट का रिएक्शन बहुत इजी होता है। तो इस केस में विटेक रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ बहुत इजी होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट कीटोन्स, तो कीटोन्स में दो इश्यूज मेजर होते हैं। एक तो ये है कि कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज सराउंडेड बाय टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। उनका रिजल्ट ये होगा कि दे विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एटम। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। दूसरी रीज़न, कार्बोनिल कार्बन एटम के दोनों साइड पे हमारे पास कीटोन में अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, वाइल इन केस ऑफ एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे हमारे पास सी एच ग्रुप अटैच होता है। तो कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन एटम है ये स्टेरिकली मोर हिंडर्ड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन एटम में एक किसी भी साइड पे बल्कि ग्रुप अटैच है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो दैट विल रिज़ल्ट नो रिएक्शन, या अगर रिएक्शन होता है तो उस केस में रिएक्शन की बहुत पुअर यील्ड होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट फास्फोरेन्स में अगर यही नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम किसी फर्दर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इस कार्बन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होगा, और ये नेगेटिव चार्ज ऑफ फास्फोरेन और इलेट इस कार्बोनिल कार्बन या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होने की वजह से ये रेजोनेट करता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से ऐसे तमाम इलेट्स जिसमें नेगेटिवली चार्ज कार्बन ऑफ इलेट किसी भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच होती है तो उस केस में रिएक्शन विटेक रिएक्शन नॉर्मली नहीं होता, और इस तरह के इलेट्स को हम स्टेबलाइज इलेट्स का नाम देते हैं। थैंक यू।